So my screen is visible to everyone. Yes. So today's topic is lunar crater and Sanskrit shlokas. Okay, is it a case of coincidence or a correlation? Okay, so we are not here to conclude anything. Here we are here to explore. Okay. With this, we start. Okay. So when we talk about impact events or these celestial objects falling from the sky, the general public view is on two extremes. So if you are a Hollywood fan, you will look at a doomsday kind of a situation. Everything getting wiped out from the surface of Earth. Even human life is getting over. And second view is wish what you want. It's a typical Bollywood style. Okay. Both views are not wrong, but both are extreme. Not every meteor impact will lead to extinction of life. At the same time, yeah, they pose a threat to life. There is a possibility that there will be human casualties or other damages to life and property. Uh, Wish angle is also not wrong. These meteors have contributed a lot to Earth in terms of rare minerals, water, or even for that matter, life itself may be a contribution of these meteors. So those is both the perspectives are not impossible perspectives. Yeah, it's true. But honestly speaking, meteor impact is more of a regular event in the history of Earth. So if you look at impact crater map, you will find Earth has come across multiple impacts in the history of 4.5 billion years. Our surface is covered by sea, so many impacts are beneath the sea. Okay. If we look at the pattern, most of the impacts are discovered in United States, Europe, Australia. These are the economically developed countries. So people have ample time to focus on these subjects. A country like ours, we have limited craters which are identified. Maybe because our focus is on our municipal corporation craters than the real craters. But yeah, our priorities are different. But these areas will also, if we study closely, we'll find many craters. Right now, people have identified Luna crater, Shiva crater is under discussion, Ramgarh crater is under discussion, or more or less it is proven. So yeah, even India and Southeast Asia will have many sites. Rather, the largest tektite field is in the Southeast Asia, and somewhere down the line that impact is expected on Indo-China border. So even that impact is under discussion, though the impact site is not found yet. So a lot of work can be done in this field. So when we talk about modern impacts, all these sites that we have seen are very ancient impact sites. So when we talk about modern impact sites, okay, well, our understanding or interest on these impacts started mainly from Tunguska event, which occurred in 1908. For those people who are not aware, in 1908, over Russian skies in Siberia, a meteor event took place. It was a substantially large event. Uh, Fortunately, that region of Siberia is not populated, so human casualties were not there. But the extent of impact was such that its effect were felt even in Germany. So seismometers in Germany recorded shock waves. People who were nearly 70, 80 kilometers away from the site, they experienced shock wave, heat wave. Many people fell unconscious at the time of event. So it was a large event. But unfortunately, this went unnoticed because of two things. One, it is in a remote area of Russia. Second, political issues were different. So work on this impact started nearly few decades later, the actual impact. And thus many evidences were lost, and that it would remain as a controversial kind of a subject for discussion, that what happened exactly, though by and large it is accepted that it's a meteor event. The real work on impact started mainly during Apollo mission, thanks to people like Eugene Schumacher, who pursued this subject, and our understanding improved. Even tests like a large nuclear test helped us to understand how these high energy events can create various effect. But the fact is, life is that we have not experienced a real impact as such. Modern man has limited understanding about what impact exactly means. It doesn't mean that we have not experienced anything. So recently, in 2013, Mother Nature showed us a trailer. They said कि okay, पूरा movie तो नहीं है, but एक छोटा trailer देख लो. So before we go on our actual subject, let's watch this trailer, which is captured on a camera. So in the nice morning over Russian sky, out of nowhere,
this small fellow enters. It's burning brighter than sun. And suddenly there is a boom. Shockwave passes through. So everything around that area shatters. This is called shockwave that occurs after the impact. Okay. This is not an impact. This was air burst. My bad. So when we talk about this meteor, if you want to talk about scientific world, yeah, it was a small, few foot long celestial rock which entered the Earth's atmosphere. It entered at a very high velocity, maybe 10 to 20 kilometer per second. As a result, air in front of it got compressed, heat was generated, meteor started burning, and eventually our atmosphere took care of it. It bursted in the air. Luckily, it didn't impact it. It bursted nearly 30 kilometers above the ground. Few rocks fell on the ground as a stream. And nearly 1,000 people were injured, despite of this getting blasted nearly 30 kilometers in the air. Now imagine a case if the stone was little larger and if it would have impacted Earth, yeah, it would have seen a severe casualty we would have experienced. Now the thing is that, but this is a scientific view. Now look at the people who have experienced this. It's a normal morning. They are just out on their regular activity. And suddenly in sky, they see something in a matter of a fraction of few seconds. There is an object which is brighter than sun. They are confused what this object is all about. Okay? They are mesmerized. There are cloud formation which is happening. Uska धुआं निकल रहा है पीछे से. So yeah, they can figure out something is coming in their way. Suddenly that goes off. You take 1 or 2 minute break because light travel faster. And by the time you recover from this, the shock wave hits you. Glasses are broken. Everything is thrown out. Now, the emotional reaction of these people is mixed. They are afraid. They are amazed. They don't know what is happening. They don't know whether to take care of injured people first or keep watching this event with inquisitiveness. So it's a mixed reaction. So these common people, they don't write scientific papers. What they eventually do, they are going to communicate their experience. For them, it's a lifetime experience. Science may say this is a regular event, but for them, it is a once in a lifetime thing. They will keep talking about this event to their next generation within the community. They may erect some monuments to commemorate this event. They will have their own versions, and these versions may not be very scientific. It will be a mix of their emotions and a real experience. Okay? So something similar has happened even in the past. Like we have seen this map, many impact events have happened, not only in India, across the globe. People have experienced it. Okay? They have tried to pass on the knowledge about it. The biggest challenge about this data, there are two things. One, this knowledge or this information is mixed with emotions. What they felt is more important than what they saw. Second, somewhere down the line, most of this information is related with religious book. So generally, scientists believe in focusing on hardcore data rather than going on people's emotion. And when religion is attached, people try to be more cautious. Nothing wrong about it, because science believes in hard fact, not in the belief system. But does that mean that we should ignore this data? Well, there is a data available. Not necessarily we need to make our own mistakes. We can also learn from others' mistakes or others' experiences. So lunar crater and ditch Shloka is an attempt to understand what they were trying to say. Are we able to find any ground evidences basis what they were saying? Okay. With this, we start the lunar subject now. At any given point in time, if anybody has a doubt, please speak. I want to keep the session interactive. Not necessary you need to wait till end is my submission. So just to cover up key features of lunar, madam has already covered it. It's a 1.8 kilometer diameter crater. Now imagine a case, a 2 kilometer का गड्ढा 150 मीटर यानी 500 फीट का गड्ढा बनाने के लिए कितने आपके मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट लगेंगे. तो इमेजिन कीजिए व्हाट एनर्जी वाज रिलीज्ड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू फॉर्म दिस क्रेटर. सो आज मॉडर्न डे अगर फॉर्मेट में हम देखने जाए तो एक गड्ढा ऐसा बना है न्यूक्लियर टेस्ट में जिसको कैसल ब्रावो कहते हैं. उस वक्त की एनर्जी एस्टिमेशन है 15 मेगाटन का ब्लास्ट था, तब जाके कैसल ब्रावो का ये गड्ढा बना था, विच इज नियरली 2 किलोमीटर वाइड क्रेटर हैविंग सम सिमिलर डेप्थ्स. ठीक है. नाउ एस्टिमेटेड साइज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज नियरली 100 मीटर्स ऑफ रेडियस. सो एक 40 मंजिला इमारत आसमान से नीचे की तरफ आ रही थी. ठीक है. सो करंट
energy estimate about lunar is around 6 megaton or 400 Hiroshima bombs. But practically speaking, I think it should be more. But that's my perception. The current data says 6 megaton. Based on various dating techniques, I think Dr. Bhandari has worked a lot on this crater. So there are various ways in Argon way, which Koibrel has studied recently. He's claiming nearly 6.5 lakh year old event. If we go by thermoluminescence, it is 50,000 year old. Carbon-14 dating, people have said 15,000. But whatever this period may be, by and large, safely we can say some species of humans was present on Earth and in this region, because in Narmada fossils have been found for some time. So some species of Homo erectus, if not Homo sapiens, was definitely present. And if it is 50,000 years, then Homo sapiens were also present. Okay, right now we are not too sure about exact period of this event. So that we will park, and that will remain a major controversy always about these observations, unless and until we get a conclusive evidence. Okay. Now, since we have not seen the actual impact event, and if we want to imagine what lunar would have looked like, yeah, we can take some clues from our Tunguska event memories, where shockwave was experienced over a long range, shockwave, heat wave, seismic wave were experienced. Tests like Castle Bravo can tell us what happens when ground bursts take place, what kind of cloud formation take place. Study from craters on Earth as well as other planets can also help us to recreate the lunar kind of a thing. So if you want to create a lunar in a shot, this is what it will look like after impact. Before impact, we have already seen over Russian sky when that small fragment entered, what happened. So imagine a case, एक 40 मंजिला इमारत जब ऊपर से जा रही है जलते हुए, तो वो कैसी दिखेगी. And on impact, this is something which will happen like this. This is a recreated image from the nuclear test records. Original image in black and white, but they have recreated this to give a realistic colors of how it will look like. So this is just to give you perspective. This is a nuclear test, not impact. Let me clarify, it is just being used for reference to understand how the fireball emerges, how the mushroom cloud is raised, or how ejecta debris is thrown out in the air. It is just to give you perspective about that. So pictorially, if we want to look at it, well, 4 major features will be seen. First of all, people will see a bright meteor burning in the sky. This object will be much brighter than sun. So people may feel, okay, there is an object which is bigger than sun for a moment, or object which is overshadowing sun. This kind of feeling is bound to happen. Second, if it's the impact, if it's a airburst, then clouds will be in air. There will be more of a plume kind of a structure, and yeah, some cloud formation will happen. But if it's a ground impact, then there will be a formation of a mushroom cloud, or if this impact is very close to ground. Now, in case of Castle Bravo, this cloud went up to nearly 35 to 40 kilometers in the air. And the diameter of this cloud was nearly 100 kilometers. So 100 kilometer का एरिया तो ये क्लाउड ही कवर कर लेता है. ठीक है, ये फायरबॉल जो था कैसल ब्रावो टेस्ट में 400 किलोमीटर से देखा गया था. सो लोनार जैसा अगर कोई फायरबॉल उठता है तो कम से कम 150-200 किलोमीटर से तो लोग इसको आराम से देख पाएंगे. ठीक है, इट विल स्प्रेड एट अ वेरी रैपिड पेस. सो लोग समझ नहीं पाएंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये. By the time they recover from this, they will experience a shock wave and heat wave. Tunguska में अगर आप देखेंगे, Tunguska में first people reported eyewitness account says कि हमने आसमान में एक रोशनी देखी, and by the time they were trying to understand what it is, they were thrown out of their chair. Like अभी हमने रशियन इवेंट में भी देखा, जैसे ही मीटियर खत्म हुआ, एक शॉक वेव पास हुई और हीट वेव पास हुई. Tunguska इवेंट में नियरली 25 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के सारे पेड़ या तो जल गए थे या गिर गए थे. इट इज दैट सिवियर इवेंट. इट वाज दैट सिवियर इवेंट. ठीक है. थर्ड थिंग, ये जितना अभी 1.8 किलोमीटर का गड्ढा, 500 फीट डीप गड्ढा हुआ है, जो धूल हवा में उठी है, पत्थर हवा में गए, वो पत्थर इवेंचुअली बहुत लार्ज एरिया पे नीचे गिरना चालू हो जाएंगे, जिनको जो फॉल आउट डेब्री होगी, और ये शायद जलते हुए नीचे गिरेंगे, तो ये ज्यादा कैजुअलिटी कॉज कर सकते हैं. ठीक है. सो इट विल बी अ केओटिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऑल अराउंड. सो अगर ये इंसान इसे देखेगा तो इसका क्या पहले बयां करूँ ये समझ में नहीं आएगा. विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एम आई वाचिंग. एक सूरज से ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट आया, फिर अचानक एक आग का गोला दिखा. बाय द टाइम आई रिकवर, किसी चीज ने मुझे नीचे गिरा दिया, बेहोश कर दिया, एंड बाय द टाइम आई एम ट्राइंग टू रन, आसमान से आग बरस रही है. सो इट विल बी अ वेरी 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 chaotic kind of a situation, and handling those emotions will be very difficult for any normal man, or even for that matter scientists. It's not easy to handle these events.
With this background, we will start evaluating various aspects about lunar. But before we go that, let's understand the radius in which this can be. Now, basis Tunguska experience, basis Castle Bravo, we have prepared this tentative map. So lunar is in the center. Red line indicates area from where fireball should be visible. Heat wave and shock wave will be felt. It is nearly 80-90 kilometer of radius. Black line is where shock wave will be easily experienced. Rather ये shock wave तो कश्मीर से कन्याकुमारी जाएंगे, क्योंकि तंगुस्का इवेंट का रशिया का शॉक वेव जर्मनी में डिटेक्ट किया गया था. रादर हाफ ऑफ द ग्लोब एक्सपीरियंस तंगुस्का इवेंट, दो इट अकर्ड इन रशिया. ठीक है, सो इसका दायरा काफी बड़ा होगा ऐसे एक्सपीरियंसेस का. दो वी डोंट हैव एक्चुअल एग्जैक्ट, बट दिस इज द एस्टिमेट. ठीक है, जो ब्लू लाइन दिख रही है गोदावरी रिवर है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि लिटरेचर कहता है गोदावरी से हमने इंपैक्ट देखा जनस्थान करके. नाउ एंशिएंट लिटरेचर में नासिक को पंचवटी कहा गया है, और इसी गोदावरी पे जनस्थान. नासिक के पीछे गोदावरी नहीं जाती, नासिक के वेस्टवर्ड जाती है, ईस्टवर्ड जाती है. तो नासिक से ईस्टवर्ड कहीं ना कहीं, या पंचवटी से ईस्टवर्ड कहीं ना कहीं जनस्थान होना चाहिए. तो ये जो इलाका है जिससे ये इम्पैक्ट दिखा गया था, ये कहीं ना कहीं एक 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के दायरा, ये मेरा एस्टिमेट है. टुडे वी डोंट नो एग्जैक्टली जनस्थान कहाँ पे है. वी नो फॉर श्योर पंचवटी कहाँ पे है. ठीक है, सो राइट नाउ वी हैव टू गो ऑन सर्टेन अजम्पशंस. बट यस, गोदावरी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, जनस्थान मेंशन्ड है, इससे ये इम्पैक्ट देखा गया था, ये मेंशन्ड है. ठीक है, नाउ अगर हम अभी, ये तो जियोलॉजिकल हुआ कि हमने ये इवेंट देखा. अब जब ये इवेंट हुआ था, तो ये इस बारे में हमको जो मॉडर्न साइंस को पता चला कुछ डेकेड्स पहले, जब ब्रिटिशर्स ने इसको पहले वॉल्केनिक क्रेटर करके अज्यूम किया, एंड बाद में रियलाइज हुआ ये वॉल्केनिक तो नहीं है, ये मीटियोरिक इम्पैक्ट क्रेटर है. ठीक है, तो कुछ 100 साल पहले हमको पता चला. बट अगर आप में से किसी ने लोनार विजिट किया है, एंड इफ यू गेट अ चांस यू मस्ट विजिट, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट लगती है. टॉप टू बॉटम मंदिर बने हुए हैं. इन मंदिरों में जो मूर्तियां इन्होंने डाली है, उसमें से कई मूर्तियां मैग्नेटिक है. तो भैया ये सलाइन वाटर का लेक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि लोग पानी भरने आते थे. तो एक सलाइन वाटर लेक से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्यों इतने रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे? कहीं ना कहीं ये डाउट आता है. बट मॉन्यूमेंट्स अलोन कांट एस्टैब्लिश कि हमने इम्पैक्ट देखा था. हाँ, इसका कुछ यूनिकनेस था जिसके लिए हमने मॉन्यूमेंट बनाई. आर्गुमेंट साइंस कर सकता है, दैट्स अ वैलिड आर्गुमेंट. ठीक है, कि सॉल्ट भी मिलता था, मैग्नेटिक पत्थर मिलते थे, तो उसके लिए बनाए होंगे, ये भी पॉसिबल है. बट कहीं ना कहीं शक आता है कि शायद पुराने लोगों को पता था. इसका कई बार जिक्र तारा तीर्थ करके आता है, यानी स्टार का तीर्थ. तो कहीं ना कहीं ये रेफरेंसेस है कि इसका कोई ना कोई सेलेस्टियल कॉन्टेक्स्ट था, ऐसा इन लोगों को शायद लग रहा था. बट कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है इन स्ट्रक्चर्स के बारे में. सो क्वेश्चन क्या, हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स है इसके बारे में टू क्लेम दिस? ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड the shlokas which talk about this impact, and can they, these shlokas, the crater and the structures, we can establish some correlation, or we can try to figure out what it is. Okay, so this is an attempt, not necessarily we can conclude anything out of this right now. ठीक है, तो आप बोल सकते हैं. अगर हम इन मीटियोर्स इवेंट की बात करें, तो ये मीटियोर इवेंट हुआ था एग्जैक्टली रामायण में, अरण्य कांड में हुआ था. जब जो डिस्क्रिप्शन है कि दंडक वन में घूमते वक्त पंचवटी से आगे जब ये लोग जा रहे थे, तो जो शूर्पणखा के चलते जो खरदूषण का वॉर हुआ था, इस वॉर से जस्ट पहले इस मीटियोर इवेंट का डिटेल डिस्क्रिप्शन है. इसका डिस्क्रिप्शन आता है ये कहते हुए कि ये बैड ओमेन था. मीटियोर इवेंट जैसे एक बैड ओमेन हुए राक्षसों के लिए, और उसका वर्णन है. तो चालू ही होता है बैड ओमेन बोल के कि ये एक अपशकुन जैसा एक इवेंट इसको बताया गया था. जो श्लोक है उनको 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. यह मिक्स है सारे श्लोक. एक तो मीटियोर की मूवमेंट आसमान में कैसे हुई, श्लोक टॉक्स अबाउट दैट. सेकंड, मीटियोर गिरने के बाद जो जो एक्सपीरियंसेस हुए उसके बारे में बताया गया है. ह्यूमंस और एनिमल्स का रिएक्शन कैसे था इवेंट के बारे में कुछ लोग वो बताते हैं. एंड देन कुछ लोग पैरेलली, वाल्मीकि जी ने भी बहुत ब्यूटीफुली इसको कहा है कि आज जस्ट टू इंट्रोड्यूस, आज हमारे साथ इसका जो पूरा ट्रांसलेशन किया है वो डॉक्टर गिरवानी भी साथ में है, हु इज एसोसिएटेड विद वाल्मीकि रामायणा's ट्रांसलेशन. इट्स अ नाइस ट्रांसलेशन, इफ यू गेट अ चांस यू शुड रीड इट. ठीक है, तो वाल्मीकि जी ने इसका बहुत ब्यूटीफुली बताया कि दोनों घटनाएं साथ में हो रही थी. तो वहां पे भी वो काफी एम्बिगुअस हो जाता है लिटरेचर, बट लिटरेचर ये कहता है कि वेपन्स यूज हुए थे इस वॉर में जो सुपर नेचुरल वेपन्स थे.
बट अगर हम इन वेपन्स का इफेक्ट देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि बाबा ये वेपन का इफेक्ट है या मीटियोर का इफेक्ट है, बट लिटरेचर इज क्लियरली सेइंग वेपन का इफेक्ट है. सो वी डोंट वांट टू कंक्लूड, वी कैन रेज अ डाउट और क्वेश्चन मार्क ओवर हियर एंड वी विल हैव टू वेट एट दिस एंड. ठीक है, सिंस दिस इज अ रिलीजियस लिटरेचर, few rules that we anticipate or we expect before we start the real discussion on shloka. Whenever we see any event, we tend to form stories, we tend to talk to next generation in a story form. Okay? But all these things are attached with your value systems, your emotions, and your experiences. So our submission is that while reading these shlokas, interpreting these shlokas, we respect every value, we respect every emotion. Neither we are here to endorse any belief system, nor we are here to challenge any belief system. Every story will have perspectives. Like टाइटैनिक जैसा इवेंट की हम बात करते हैं तो कोई उसको रोमांटिक स्टोरी करके प्रेजेंट करना चाहेगा, कोई उसको एक डायमंड का कर्स करके प्रेजेंट करना चाहेगा, तो स्टोरी के पर्सपेक्टिव्स होते हैं. एंजॉय दैट, नो हार्म. बट जब हम साइंस की बात करेंगे, we will have to focus only on available data points and available evidences which are factual evidences. We can't conclude too much. कोई ये सोचता है कि ये जो शिपरेक दिख रहा है इसमें ये टाइटैनिक की हीरोइन दिखेगी तो सर वी अप्रिशिएट योर एक्सपेक्टेशंस, बट वो प्रूव नहीं किया जा सकता. नॉट नेसेसरी कि लिटरेचर गलत है, हाँ, बट जो साइंटिफिकली हम नहीं प्रूव कर सकते वो नहीं प्रूव कर सकते. सो वी विल नॉट डिस्कस एनी कैरेक्टर्स, एनी वैल्यूज, वी विल सिंपली फोकस ऑन मीटियोर रिलेटेड डिस्कशंस स्ट्रिक्टली. सो अभी श्लोकों की तरफ आते हैं. मैं संस्कृत में रीड करने की कोशिश करूंगा. डॉक्टर गिरवानी इज अथॉरिटी ऑन दिस. हो सकता है मैं कुछ गलती करूं, मेरा प्रोनाउंसिएशन संस्कृत में इतना अच्छा नहीं है, तो पार्डन मी. तो पहला श्लोक कहता है, श्यामम रुधिर पर्यंतम बभूव परिवेशणम अलात चक्र प्रतितम परिगृह्य दिवाकर. सो श्लोक कहता है कि सूरज को ढकते हुए एक जलते हुए कोयले की तरह एक रिंग आगे आती दिखी जिसने सूरज को पूरी तरह से ढक दिया. कहीं ना कहीं सूरज की तरफ से ये ऑब्जेक्ट आ रहा है करके वो बोल रहे हैं. लोनार की खासियत ये है कि लोनार का इंपैक्ट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है. तो लोनार में भी जो इंपैक्ट का डायरेक्शन डिसाइड हुआ है वो ईस्ट टू वेस्ट नियरली 40 डिग्री के एंगल पे लोनार का इंपैक्ट हुआ है. ठीक है. सेकेंड श्लोक इज वेरी इंटरेस्टिंग. कबंध परिभाषो दृश्यते भास्करांतिकी जग्राह सूर्यम स्वरभानु पर्वणि महाग्रह प्रवति मरुत शीघ्र निष्प्रभो बुद्ध दिवाकर. बिफोर आई गो टू ट्रांसलेशन, इसमें 3 वर्ड ऐसे हैं जो सूरज से ज्यादा पावरफुल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या कॉमेट्री बॉडी की बात कर रहे हैं. कबंध, ये वर्ड जो कई बार कॉमेट्स के लिए यूज किया जाता है संस्कृत में. स्वर भानु, ये एक डीमन है जो सूरज को ओवरशैडो कर सकता है या ओवर पावर कर सकता है. एंड मरुत, ये शब्द ऋग्वेद में कई बार मीटियोर्स के लिए यूज किया गया है. डॉक्टर आर्यन अय्यंगार की इसके ऊपर एक पूरी पेपर है, बहुत ही वंडरफुल पेपर है. इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड दे शुड रीड दिस पेपर. So now let's go into the translation. The planet Ketu or comet appeared like a iron beam. Iron beam अभी हमने देखा था रशियन मीटियोर इवेंट का, तो कैसे दिखता है वो आयन बीम टाइप. ठीक है. नियर द सन, although it was not a full moon or moonless day, राहु eclipsed the sun. तो ये ऑब्जेक्ट जैसे पहले कहा एक चारकोल रिंग सूरज को ढक रही थी, उसने सूरज को ढक दिया था. मरुत, दैट इज मीटियोर्स, ब्लू हार्ड एंड सन वाज लस्टरलेस. सन वाज लस्टरलेस अभी हमने देखा था जब मीटियोर आता है वो जलना चालू करता है तो ऐसे लगता है आसमान में सूरज से भी पावरफुल एक ऑब्जेक्ट आ गया है, तो सूरज को लस्टरलेस फीलिंग आने लगती है. थर्ड श्लोक का तो बहुत ही कैटेगोरिकली बात करता है. उल्का, उल्का तो सब लोग जानते हैं मीटियोर को कहा जाता है. उल्काश्चापि सनिर्घाता निपेतु घोर दर्शन प्रचाल मही सर्वः सशैल वन काननः. सो ये कह रहे हैं कि इट वॉज ड्रेडफुल टू वॉच मीटियोर्स. ठीक है. दैट ड्रॉप फ्रॉम द स्काई. द अर्थ ट्रम्बल्ड ऑल ओवर विथ माउंटेन ग्रोव्स एंड फॉरेस्ट. सो दे आर सेइंग कि पूरी धरती कांप गई मीटियोर्स के गिरने से. ठीक है. तो ये शॉकवेव है या शॉकवेव हो सकती है जिसका ये वर्णन हो सकता है. बट इनमें से कोई भी श्लोक ये नहीं कंफर्म कर रहा है कि इम्पैक्ट है. ये एयरबस भी हो सकता है, जैसे हमने रशियन केस में देखा वो हवा में ही पड़ गया था, फिर भी ये फीलिंग्स आ सकती है. बट जबकि लोनार बहुत ही क्लियर है कि ग्राउंड इम्पैक्ट है. ठीक है. तो ये 3 श्लोक तो ये जस्टिफाई नहीं करते, तो ग्राउंड इम्पैक्ट है. तो हमको दूसरे श्लोक देखने पड़ेंगे जो शायद ग्राउंड इम्पैक्ट थ्योरी को सपोर्ट कर सकते हैं.
सो अभी क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है एंड इन क्लाउड्स को हम मशरूम क्लाउड आज की तारीख में कहते हैं। अभी उस वक्त तो मशरूम क्लाउड ये टर्म थी नहीं, हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद मशरूम क्लाउड ये टर्म इजाद की है। सो पहले जमाने में उसको क्या कहे, उनके लिए एक क्वेश्चन था, तो उन्होंने जो कहा है प्रभिन्न गिरि संकाश तोयश शोधनित धारिण आकाशम तदनाकाशम चक्रुभ्रीमा वलाह कहा। तो वो कह रहे हैं कि आसमान में गिरते हुए पहाड़ की तरह एक उन्होंने क्लाउड देखा जो लाल रंग की बारिश कर रहा था। लाल रंग की बारिश मीटियोर इवेंट से कोई गारंटी नहीं है कि मीटियोर से लाल रंग की बारिश होती है, इसका भी प्रमाण नहीं है, बट ये श्लोक में कहा गया है। और इस लाल रंग की बारिश के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे कि ये क्यों कहा जा सकता है। ठीक है, आगे के श्लोक जो है पहला मैं ये पढ़ता हूँ, फिर आगे के दो में एक साथ पढ़ूंगा। बभूव तिमिरम घोर मुदतम रोम हर्षणम दिशो वा विदिशो वापि न च व्यक्त चकाशिरे। इतना डार्कनेस फैल गया कि हम दिशाएं और जो जैसे हम पूर्व पश्चिम या नैऋत्य ये सब वायव्य, ये कोई दिशा समझ में नहीं आ रही थी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सब जगह अंधेरा फैल गया, हॉरिबिलिटेशन यानी एक डर सा फैल गया पूरे हवा में। ठीक है, आगे के दो श्लोक में एक साथ पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ही इंटररिलेटेड ये श्लोक आते हैं और एक के पीछे एक लिखे हैं इन्होंने। उदत द्रुत विना वातम रेणु जल धारुण पिचिकूचि वश्यंतो बभूवस्तत्र शारिकः अमि रुधिर धारस्तु विसृजन्तः खरस्वनः व्योम्नि मेघा विवर्तन्ते पुरुषा गर्भधारुण। तब ये क्या कह रहे हैं कि हवा में बिना मीन्स आसमान में बिना हवा के एक धूल का गुब्बार उठता है। ठीक है, ये ब्राउन कलर का धुएं का गुब्बार हवा में उठ गया जैसे ये हुआ। सारिका बर्ड सैंग विच आई डोंट नो ये क्यों लिखा है, मैं समझ नहीं पाया इसको, बट हो सकता है ये मीटियोर के बाद आने वाली आवाजों के बारे में उन्होंने कहा हो। बट ये बहुत क्लियर है कि बिना हवा के, बिना किसी, क्योंकि शॉकवेव बाद में आती है, तो देखने वाले के लिए पहले हवा में धूल का गुब्बार उठ रहा है जो ब्राउन कलर है, तो वो सरप्राइज नहीं है क्या है। ठीक है, फिर वो वर्णन और करते हैं क्लाउड्स का। दीज रम्बलिंग क्लाउड्स brownish red having the color of gray of a donkey are moving about in the sky showering stream of blood। मीटियोर इवेंट के बाद अगर उसमें वोलाटाइल्स है तो बारिश हो सकती है, बट क्या ब्लड गिरेगा, रेड रेन गिरेगी, वी डोंट नो। अगेन ये रेड रेन का जिक्र है और भी 2-3 बार आया है पूरी घटना में। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, धूल उठी और क्लाउड दिखा और क्लाउड का कलर बहुत स्ट्रेंज उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ब्राउनिश रेड हैविंग कलर ऑफ ग्रे। नाउ ग्रे क्लाउड है तो ब्राउनिश रेड क्यों कहेगा कोई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आता कलर ऐसा क्यों डिस्क्राइब किया गया है, बट जब हम मॉडर्न रेफरेंसेस देखते हैं न्यूक्लियर टेस्ट के तो ये समझ में आता है। जब न्यूक्लियर टेस्ट के रीडिंग्स है, मैंने दोनों पेपर का रेफरेंस यहाँ दिया है। द इनिशियल कलर ऑफ सम रेडियो एक्टिव क्लाउड्स कैन बी रेड और रेडिश ब्राउन। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड, बट इवेंचुअली ये कलर जाके व्हाइटिश या ग्रेइश कलर इन क्लाउड्स को आता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक कलर है, हालांकि मीटियोर्स रेडियो एक्टिव नहीं होते, ये रेडियो एक्टिविटी के कलर्स है। तो मीटियोर में क्यों आई ये क्वेश्चन है, एक लॉजिकल आंसर शायद डॉक्टर भंडारी इसके ऊपर ज्यादा अच्छे से कमेंट कर पाए कि इवेंचुअली टेरेस्ट्रियल रॉक्स में और मीटियोर में पोटेशियम तो होता है, साथ में यूरेनियम की भी कुछ मात्रा रहती है, थोरियम रहता है। एट दिस एनर्जी क्या रेडियो एक्टिविटी भी इनिशिएट होती है, वी डोंट नो। एंड इसीलिए पुराने लिटरेचर हमें काम आ सकते हैं टू टेस्ट आवर मॉडल्स। आई डोंट वांट टू कमेंट कि ये एग्जैक्टली क्लाउड का कलर रेडियो एक्टिविटी से ही आया था, हो सकता है धूल का भी कलर है इवेंचुअली बाद में कॉमेंट्री बॉडी रही होगी तो पानी के चलते ग्रे हुआ होगा, बट कहीं ना कहीं ये कलर का जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो स्पेसिफिक कलर डिफाइन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली रेजेस क्वेश्चन कि ये कलर क्यों इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। अब हम आते हैं कि प्राइमा फेसी लग रहा है कहीं तो इम्पैक्ट हुआ है और मशरूम क्लाउड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद वो जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शॉकवेव या हीट वेव की एक बात की जा रही है। उत्पतेषु विना रात्रि तारा खद्योत सप्रभा सम लीन मीन विहगा नलिन्य शुष्क पंकजा तस्मिन् क्षणे बभूवश्च विना पुष्प फल द्रुमयः। सो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं इसके बाद बर्ड्स ने और फिशेस ने तालाब में शरण ले ली, तालाब के नीचे चले गए एक्वाटिक बर्ड्स एंड फिशेस, तालाब में जो कमल के फूल थे वो सूख गए। तो कहीं ना कहीं एक हीट वेव पास जैसा एक
उन्होंने सिचुएशन डिस्क्राइब किया गया है. एंड देन दे आर सेइंग ट्रीज वेर बिफोर्ड ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो तंगुस्का में जब 80 किलोमीटर दूर के ऊपर जब ये शॉकवेव पास हुई थी, ग्रास सूख गई थी तंगुस्का की. तंगुस्का में घर अब में काफी चीजें गिर गई थी. अभी भी हमने शॉकवेव देखा तो 70-80 किलोमीटर दूर से, जैसे गोदावरी के किनारे अगर पेड़ों से डालियां या फल या फूल टूट रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है. शॉकवेव एंड हीट वेव का शायद डिस्क्रिप्शन है. एंड वापस वही आ जाता है, उल्कापातस्य सन्निर्घाता निपेतु घोर दर्शना प्रचाल मही सर्वा सशैल वन कानन, यानी पूरी धरती हिल गई. तो कहीं ना कहीं ये शॉकवेव का डिस्क्रिप्शन ये 4-5 श्लोकों में उन्होंने डिस्क्राइब किया ऐसा लग रहा है. अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो रेड रेन की हम बार बार बात कर रहे हैं. मीटियोर इवेंट्स और रेड रेन, इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन अब तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है. सो वी डोंट वांट टू से कि ये जो रेड रेन हुई थी मीटियोर से हुई थी. नासा ने एक स्टडी कंडक्ट कराई थी 2008 में ऑन रेड रेन्स, क्यों होते क्यों है. अभी भी श्रीलंका में हुए थे, केरला में भी हुए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रेड रेन होती है, बट मीटियोर से होती है इसका कोई प्रमाण नहीं है. तो ये जब स्टडी की गई तो पाया गया हिस्ट्री में 23 अकाउंट्स है अक्रॉस द ग्लोब. यूरोप में भी है, सेंट्रल एशिया में भी है, इंडिया में तो कई 2-3 इंस्टेंस में बताया गया है कि मीटियोर एक्टिविटी या कॉमेट्री एक्टिविटी के बाद रेड रेन हुई है. ठीक है. इजिप्ट में 30 BCE में, जैसे रामायण में एक्सप्लेन्ड है, सिमिलर एक्सप्लेनेशन इजिप्ट में भी अवेलेबल है कि मीटियोर के बाद रेड रेन हुई थी. हाउएवर राइट नाउ उसके कोई प्रमाण नहीं है, एस्टैब्लिश नहीं है. बट कैफर्टी ने भी ये कहा है कि ये जो पॉइंट है रेड रेन आफ्टर मीटियोर और ड्यूरिंग मीटियोर इवेंट, ना तो इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है ना ही इसको रिजेक्ट किया जा सकता है. सो एज ऑफ नाउ जब तक हमारे पास एक्चुअल एविडेंस नहीं आ जाते, we will have to park this point mentioned in all shlokas कि रेड रेन हुई थी या ब्लड जैसी रेन हुई थी. we will have to park it. now let's go to next thing कि ये जब हुआ तो कैसे इंसानों को लगा, क्या एनिमल्स ने बिहेव किया. अगर आप देखेंगे ये पीछे जो बैकग्राउंड में स्लाइड है, ये तुर्की में जब अभी अर्थक्वेक हुआ था तो बर्ड्स अचानक से पहले ही उन्होंने रिएक्ट करना चालू कर दिया. तो एनिमल्स और बर्ड हमसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन चीजों के लिए. इन्होंने क्लियरली कहा है जनस्थान में दे क्रिएटेड कैकोफोनी. आई विल नॉट रीड ऑल दीज श्लोकास. बर्ड स्टार्टेड क्रिएटिंग कैकोफोनी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा शोर शराबा चालू कर दिया. राम ने जब सेंट्रल कैरेक्टर जो है अपने स्टोरी के भगवान राम, उन्होंने ये फिनोमिनन देखे, लक्ष्मण जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. ओ लॉन्ग आर्म लक्ष्मणा, सी दिस कैलामिटीज फिनोमिना दैट फॉरबिड द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेंस एंड डीमंस. तो इस दुनिया में इंसान और राक्षसों की बड़ी हानि होने वाली है इस घटना में, ये कह रहे हैं. ठीक है. द वे द फॉरेस्ट बर्ड्स आर स्क्रीचिंग मेक्स मी फोरसी डेंजर एंड मेक्स सर्वाइवल डाउटफुल. तो ये वो ऐसे ही इवेंट है जहाँ पे सर्वाइवल का शक आता है. अगर रशियन इवेंट भी देखेंगे, हमने जो इनिशियली देखा जब शॉकवेव पास हुई, तो डेफिनेटली लाइफ का थ्रेट तो लगता है, जबकि वो बहुत छोटा इवेंट था. ये बहुत बड़ा इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. फिर आता है बहुत डेफिनेटिव 2 श्लोक आते हैं जो कहते हैं सिवियर डैमेज टू लाइफ और मास डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन इज गोइंग टू अकर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो जब इतने स्पेसिफिक बात की जा रही है कि मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इवेंट डेफिनेटली बड़ा था. गोदावरी के बेसिन में या डेक्कन प्लेटो में या पूरे सेंट्रल इंडिया में एक क्रेटर जो नोन है एज ऑन डेट, वो लूनार क्रेटर है. एंड ये सारे जो श्लोक इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक मीटियोर इवेंट जो ग्राउंड इम्पैक्ट इवेंट है देखा गया था. एंड बहुत क्लोज इसका एग्जिस्टेंस है, चाहे जो जगह एक्सप्लेन की और जहां ये क्रेटर है. ठीक है. देयरफॉर वो कहते हैं आगे, देयरफॉर टेक शेल्टर अलॉन्ग विद सीता इन एन इनएक्सेसिबल माउंटेन केव. बट ये ऐसे पॉइंट पे कहते हैं जब जंग शुरू होने वाली है, तो वापस ये एम्बिग्युअस हो जाता है कि इज ही टॉकिंग बिकॉज ऑफ मीटियोर इवेंट, और क्योंकि पहले तो बोलते हैं ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, आप भागो यहाँ से, लाइफ नहीं बचने वाली है. फिर बोलते हैं जंग चालू हो रही है, तुम आप छुप जाओ सीता को लेके, मैं इनको देखता हूँ. अब किनको देखता हूँ? ही इज टॉकिंग अबाउट टेकिंग 14,000 demons head on with a handheld weapon of bow and arrow. Fair enough, he was a god, so we don't want to go into कैसे लड़ाई हुई थी, क्या हुई थी, into that डिटेलिंग. बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है. ठीक है. सो इन श्लोकों में अब मीटियोर का डिस्क्रिप्शन बंद हो जाता है और लड़ाई की बात चालू होती है कि 14,000 डीमंस ने हमला कर दिया और कुछ ही क्षणों में ये सारे 14,000 डीमंस मारे गए. एंड इनके मारे जाने के पीछे कुछ स्पेशल वेपन्स जिनको दिव्यास्त्र भी कहा जाता है, ऐसे के डिस्क्रिप्शन है.
तो लेट्स अंडरस्टैंड, और दोनों तरफ से ये वेपन ऐसा कहा गया यूज किए गए। तो सबसे पहले जो राक्षसों ने वेपन डिप्लॉय किया था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। इत्युक्त्वा परम क्रुद्धस्था गदाम परमा गदाः खरश्च क्षिपे समाय प्रदीप्ताम अश्निम यथा। अश्नि अगेन मीटियोर को कहा जाता है। तो उन्होंने कहा राक्षसों ने मीटियोर जैसे जलने वाली एक गदा राम की तरफ उछाली, और वो कहाँ उछाली, तो वो आसमान में उछाली। ठीक है। अंतरिक्ष गताम, मैं दूसरा श्लोक पहले पढ़ता हूँ, बीच में बीच वाला पढ़ता हूँ क्योंकि रिलेशन उसमें ठीक समझ में आएगा। अंतरिक्ष गताम राम चिदे बहुधा शिरहि। तो ये गदा आसमान में अंतरिक्ष की तरफ चली गई, जिसको राम ने गिरा दिया। फिर ठीक है, भी बाद में श्लोक आता है कि खरबाहु प्रयुक्ताम सा प्रदीप्ताम महति गदा भस्मं वृक्षाश्च गुल्माश्च कृत्वा गत्त समीप्ततः तामापन्तन्ति ज्वलताम मृत्युपाशो पमाम गदा। तो ये कह रहे हैं इसके लिए अ ह्यूज ब्लेजिंग मैस, एक जलती हुई बड़ी गदा जो खर ने बेची थी, इसने सारे पेड़ पौधे जला दिए। तंगुस्का में भी पेड़ जले थे, इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ तो पेड़ जलेंगे। अगर फायर बॉल, अगर आप पीछे के इमेज देखेंगे तो क्या ये फायर बॉल को गदा कहा गया है, वी डोंट नो। अगर हम लिटरेचर की माने, सिंस रिलीजियस लिटरेचर है, विल हैव टू गो बाय इट, कि वो वेपन वेज यूज हुआ है, बट कहीं ना कहीं एक फायर बॉल के इफेक्ट ज्यादा लग रहे हैं रादर देन किसी इंसान के या किसी इंडिविजुअल के आसमान में उछाले गदा से कभी पेड़ जलना। शक होता है हाँ, बट लिटरेचर है, हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था, लोगों के सेंटिमेंट्स, इमोशंस अटैच्ड है, वी आर नॉट हियर टू चैलेंज एनीबॉडीज इमोशंस और सेंटिमेंट। कहीं ना कहीं ये वेपन का डिस्क्रिप्शन है। फिर सेकंड वेपन है जो राम ने यूज किया था टू किल 14,000 राक्षसों को मारने के लिए, इसको कहा गया है गंधर्वास्त्र। ठीक है। तो मैं सीधे श्लोकों पर जाता हूँ। एज द इंफ्यूरिएटेड डीमंस अगेन हर्ल्ड टुवर्ड्स रामा, filling the quarters and intermediate directions, raining missiles, Rama aimed the dazzling Gandharvastra, producing frightening war cry. Rama then let out from his bow, stretch round, word थोड़ा critical है, stretch round, thousands of arrows that covered the 10 quarters. इन्होंने चारों दिशाएं भर दी। ठीक है। जिससे पूरा आसमान काला हो गया। एंड आसमान से सूरज ना दिख रहा था, ना आसमान दिख रहा था, सिर्फ एरोज नीचे आ रहे थे। ठीक है। The darkness created by arrows that covered the sky and the sun. Rama looked as though he was vomiting them. ठीक है। एंड एरोज का जो डिस्क्रिप्शन है, गोल्ड टिप्ड एरोज, यानी सोने जैसे चमकने वाले एरोज विद रिजेंबल्ड फायर, आग की तरह थे, जिनके पीछे धुआं था। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है ये आसमान से बड़े पैमाने पे, जब आसमान में क्लाउड है, जो डस्ट क्लाउड रेज हुआ है, जिसको इजेक्टा क्लाउड कहा जाता है, जैसे हमने कैसल ब्राउ में देखा, ये 100 किलोमीटर तक फैल सकता है। तो कहीं ना कहीं पूरा आसमान काला हो चुका है, सूरज ढक चुका है, और आसमान से जलती हुई चीजें नीचे की तरफ आ रही है धुआं छोड़ते हुए। सो अगेन ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि ये कहीं ना कहीं मीटियोर के ही इफेक्ट्स है rather than weapon, but currently जो लिटरेचर कह रहा है, we'll have to respect that, ये वेपन यूज किया ऐसा करके लिटरेचर बोल रहा है। बट वाल्मीकि जी ने बहुत ट्रिक टैक्टफुली उसमें कई श्लोक लिखे हैं जिन्होंने कहा है कि दोनों घटनाएं समांतर हो रही थी, और दोनों घटनाएं कौन सी वो नहीं लिखा है। तो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन के लिए उन्होंने काफी अच्छी तरीके से जगह रखी हुई है। सो लेट्स रिस्पेक्ट दैट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है भाई, ये तो वर्णन है एक मीटियोर इवेंट का, यहाँ पे क्रेटर भी दिख रहा है, बट इसका लूनार में जो स्ट्रक्चर है इनसे क्या संबंध है। ठीक है। तो लेट्स लुक एट लूनार के स्ट्रक्चर्स के पीछे की स्टोरीज क्या है, इन मंदिरों की कहानियां क्या है। तो लूनार का जो प्राइम डीएटी है, जिसको कहा जाता है दैत्य सूदन, और दैत्य सूदन जनरली एक कॉमन नेम नहीं है, जैसे शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, ये जैसे कॉमन नेम है, दैत्य सूदन नेम कॉमन नहीं है। इसकी स्टोरी यह है कि विष्णु अवतार में जब विष्णु का मानव अवतार जब इस एरिया में आया था, तो इनकी राक्षसों के साथ लड़ाई होगी, और उनकी लड़ाई का मेन कारण था राक्षसों की बहन। और इस लड़ाई में जब विष्णु ने अपने वेपन्स यूज किए, तो ये तालाब बना है, और इसके याद में ये दैत्य सूदन का मंदिर बना है। तो अगर हम लोग रामायण का इवेंट देखें जिसमें ये स्टोरी बयां की गई है, ये शूर्पणखा का इवेंट है, जिसके बाद खरदूषण से लड़ाई हुई थी। शूर्पणखा बहन थी रावण की और खरदूषण की, जिसके चलते लड़ाई हुई थी। तो कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन में और स्ट्रक्चर की स्टोरी में एक समानता नजर आती है।
ठीक है, हालांकि कंफर्म नहीं किया जा सकता। रामायण के इस पूरे चैप्टर के एंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, जो हर नाम दिए जाते हैं भगवान को, तो इस इवेंट के बाद जो नाम दिया गया है वो राक्षस संगम मर्दनम, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमन, या सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो दैत्य सूदन। शायद कहीं ना कहीं ये श्लोक और ये मंदिर की कहानी शायद रामायण में जो लिखे श्लोक उनसे शायद मिलती जुलती है। बट तो ये बाई लार्ज कहा जा सकता है कि पुराने लोगों ने कहीं ना कहीं जो कुछ देखा था गोदावरी के रीजन में, वो जो देखा था, जो लोनार का क्रेटर है और एंशिएंट स्ट्रक्चर में शायद कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है। बट सबसे बड़ा फैक्टर है, ये इम्पैक्ट 15,000 साल पहले हुआ था या 7 लाख साल पहले हुआ था, वी डोंट नो। एंड जब इतनी समय में गैप है, तो जब तक हम असर्टन नहीं कर लेते रामायण की एज, इम्पैक्ट की एज, तब तक इसको पॉसिबिलिटी ऑफ कोइंसिडेंस कांट बी इग्नोर। वन थिंग इज फॉर श्योर कि गोदावरी के रीजन में कहीं ना कहीं लोगों ने इम्पैक्ट देखा था, एंड इवेंचुअली वो लिटरेचर में कैप्चर हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। राइट नाउ वी कांट कंक्लूड एनीथिंग, वी विल हैव टू कीप द डिस्कशन ओपन, but yes, we are working on other references mentioned in ancient literature and trying to figure out वो events में और इन events में कोई टाइम फ्रेम की समानता है क्या, तो एटलीस्ट उन इवेंट्स को लेके हम फिक्स कर सके ये इवेंट किस ईरा के या किस पीरियड के बताए गए हैं। क्योंकि लिटरेचर में काफी जियोलॉजिकल इवेंट्स और भी है अपार्ट फ्रॉम दिस। लिटरेचर बहुत टैक्टफुल वे में लिखा गया है, ठीक है, तो बहुत संभल के पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर गिरवानी जैसे लोग या डॉक्टर भंडारी जैसे जो ज्ञानी लोग हैं, जो इस सब्जेक्ट के मास्टर है, अगर ये लोग इन लिटरेचर्स पे थोड़ी हमें मदद कर सके या और इंटरेस्ट दिखा सके, तो शायद इन लिटरेचर से बहुत कुछ चीजें और भी हम समझ पाए। ठीक है, वी कैन गो टू क्वेश्चन आंसर, बट अगेन फ्यू रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड। ह्यूमन वैल्यूज रिलेटेड या इमोशंस रिलेटेड कोई सारे चीजों को हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आपका धर्म के ऊपर कोई पर्सपेक्टिव है या स्टोरी के ऊपर पर्सपेक्टिव है, अगेन वी आर हैप्पी टू हियर बट कांट कमेंट any available fact or meteor event. If you have any questions, more than happy to take on. Again, not endorsing or not challenging any religious belief. Everyone is free to have their own interpretation. So the forum is open for discussions. Thank you. हाँ डॉक्टर कोठारी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो मुखन्ना साहब,